बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये लेसन ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा है। फर्स्ट ईयर के इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारी जो बारी है, आज का लेसन यूनिट नंबर 10, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ये हमारी आज के लेसन का हिस्सा है। उस लेसन के हवाले से हमने उसका क्या करना है उसमें ज़िक्र करते हैं। वर्ड्सवर्थ क्या है? वर्ड्सवर्थ was an English romantic poet who loved nature. He was a great poet, romantic poet, and along with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the Romantic Age in literature with their joint publication Lyrical Ballads। ये उसके जो है नज़्में। His famous poems are The Prelude, Ode on Imitation of Immortality, Lucy Gray and Daffodils। ये डेफोडिल्स आप पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में उसकी ये पोएम है डेफोडिल्स की। उसी पोइट की यही नज़म है इधर आपकी फर्स्ट ईयर में जो अभी कोर्स में शामिल है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। व्हाट इज़ थीम? थीम इसका है एप्रिसिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। एप्रिसिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, ये उसका क्या है? थीम है। समरी उसके हवाले से क्या है? समरी इस पोएम की ये है, मरकज़ी ख्याल, सेंट्रल आइडिया, ह्यूमन्स इग्नोरेंस ऑफ नेचर एंड ब्यूटी इन नेचर। ये इसकी क्या है? men are too much busy in their daily life without much influence by the beauty of nature and the beautiful natural phenomena which are occurring in a day-to-day life. All these are there, but men and people are too much materialistic, and the poet has mentioned all these qualities and these activities in the context of industrialization. Okay, this was all about the central idea. Poet क्या कहता है कि हमारी वो जो इंसान है वो सारी ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी ख़ूबसूरत चीज़ों, ख़ूबसूरत वाक़ियात और मुख्तलिफ़ मज़ाहिर से हम क्या हैं, वाकिफ़ नहीं हैं, हम लापरवाह हैं, हम बेखबर हैं। लिहाजा यहाँ पे वो उन चीज़ के बारे में अफसोस के साथ तो उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं कि हम ब्यूटी ऑफ नेचर से क्या है उनके साथ इन टच नहीं है, हम उनको उस तरीके से नहीं समझ रहे जिस तरीके से पोइट ने उसको क्या किया, फील किया है। ओके, गो टू योर बुक, टेक्स्ट बुक, पेज 94। बोर्ड पे लिखने की बजाय आप ज़रा अपने टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर की जो किताब है, चूँकि इसका नज़म क्या है, फर्स्ट ईयर की किताब, उसको आप ओपन योर बुक एट पेज 94। I hope you have opened the book. If you are in line with me, okay, the title of this poem is The World is Too Much with Us, written by William Wordsworth. First, I do the reading for you, model reading. You listen and then you follow. You listen and then you follow. The first, this is a sonnet containing 14 lines. The first line I start, model reading is done for you. The world is too much with us, late and soon, getting and spending. We lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. The sea that bears our bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For these, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God,
I would rather be a pagan suckled in a crete outworn, so might I standing on this pleasantly have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. Okay, अब आए इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग द पोएम, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वंस अगेन. You have to read it for yourself. There is what is difference between the poem and prose? Prose, there is a rhythm in the prose, there is a rhythm in the poem, but there is a metrical form in the poem, and the metrical form that gives a song, a music, a melody. Here is, you can feel, you have to read it. The world is, listen once again, I am going to explain it for you. The world is too much with us, late and soon, getting and spending. We lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. This sea that bears our bosom to the moon. A world is too much with us. हमारे साथ दुनिया में बहुत कुछ है. A world is too much with us. Late and soon, पहले भी और अब भी, यानी पहले भी रहा है और अब भी, जल्द या बदेर हमारे पास बहुत कुछ है. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम हासिल करते हैं और हम खर्च भी करते हैं. हम अपनी तवानाई इसको क्या करते हैं, सर्फ करते हैं. वी ले और वेस्ट आवर पावर्स, लेकिन हम अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं, बहुत सारी सलाहियतों को हम भी अब भी खो रहे होते हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. We have given our hearts away, a sordid boon. Little we see in nature, that is all. हम कायनात में देखते हैं बहुत कम देखते हैं. That is ours, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ जो है, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत फिनोमेना हैं, दरख्त हैं, हवाएं हैं, चांद है, सितारे हैं, आबशार है, पानी है वगैरह. लेकिन इन चीज़ों को वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, अ सॉर्डिड वुंड. लेकिन हमने क्या किया हुआ है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. लेकिन हमारे दिल इन चीज़ों में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि हमने अपने दिल को, अपनी दिलचस्पियों को, अपनी तवज्जो को लगाया हुआ है. अ सॉर्डिड वुंड, सॉर्डिड मीन्स डर्टी और सेल्फिश, खुदगर्ज या बेकार. बून, समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल, बेनिफिशियल, उन चीज़ों में हमने लगाया है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज मटेरियल बेनिफिट्स. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, बट वी आर इग्नोरिंग द थिंग्स दैट आर ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच आर इन नेचर. This sea that bears our bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. This sea that bears our bosom to the moon, ये समंदर that bear, जो खुला रखा है, our bosom to the moon, अपने पानी, अपने उसका जो सीना है वो चांद के लिए, रोशनी के लिए खुला रखा है. The winds that will be howling at all hours, वो जो हवाएं चलती है हर घंटा हर लम्हा, जो हवाएं चलती हैं और शोर मचाती है. हॉलिंग, क्राइंग, हॉलिंग मीन्स क्राइंग. यहाँ पे हम शोर मचाती हुई हवाएं होती हैं, जो हवाएं मचलती हैं, उसी तरीके से ये भी. और इसके साथ एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. और अब बाज़ औक़ात ये चलती होती हैं और फिर दूसरे लम्हे ये क्या करती हैं, ये फिर खामोश होती है, रुकी हुई होती है. अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर. फ्लावर्स क्या करते हैं, टॉस देयर हेड. जब हवा आती है तो उसके साथ क्या करते हैं, टॉसिंग ऑफ हेड करते हैं. लेकिन जब इस वक्त हवा नहीं चलती तो वो एक मकाम पे कैसे होते हैं, एक मकाम पे ऐसे गोया वो सोए हुए होते हैं. जब हवा नहीं चलती तो उस वक्त क्या होते हैं, गोया वो भी सोए हुए थे. हवा भी ऐसे होती है कि वो इन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करती. फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. फॉर दिस, हवा के लिए, पानी के लिए, नेचर की ब्यूटी के लिए, फॉर एवरीथिंग,
हर चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम क्या हैं, आउट ऑफ ट्यून है, यानी हम उनके साथ हारमोनी में, हम आहंगी में नहीं है, आउट ऑफ ट्यून है। उसका हमारे साथ उनके जो सुर है उस सुर के साथ हम साथ नहीं निभा रहे, बल्कि हम क्या है उससे बिल्कुल बेखबर हैं। तो ये पहली उसमें लाइनों में क्या आ जाती है कि उसके मुताबिक पोएट वही हमें याद दिलाना चाहता है कि हम क्या करते हैं, हम रोज़ाना ज़िंदगी में इतने मुनहमिक हैं, इतने बिज़ी हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि हम दुनिया की बहुत सारी खूबसूरती के वाक़यात, खूबसूरती के वो जो है नमूने हैं या फिर वो पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़, चाहे वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे, चाहे वो क्या है, वो समंदर है, चाहे वो चाँद की रोशनी है, चाहे वो हवा जो चलती है, मचलती है और कभी रुक जाती है और फूलों की तरह, खामोश फूलों की तरह हो जाती है। तो फिर उस तरीके से इन तमाम चीज़ों में हमारे लिए चार्म बहुत कम है, हम इनके साथ क्या है, इन ट्यून नहीं जा रहे। सो द पोएट एक्सप्लेन्स ओवर हियर दैट ह्यूमन बीइंग, they are very much busy in daily life, they are doing their materialistic activities in a day-to-day life, which are being considered dirty or helpless or selfish activity by the poet, whereas the nature beauty that is in the form of sea water open to the moon and the winds which are blowing and at a different occasion, in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, etc. All these causes a certain sound, musical sound in the nature, all these. And similarly, sometimes it is not blowing, then it looks like, it appears like flowers which are sleeping. But a human being is very less affected, or in other words, we are ignorant of these beautiful charms, these beautiful phenomena. According to the poet, these have less effect upon us, they don't influence us, or in other words, we are out of tune. We are not in harmony with the beauty of nature. That is the message by the poet in this poem. Okay, come towards the next line. It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckle in a creed outworn. So might I, standing on the pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. It moves us not, ग्रेट गॉड, ये हम पे असर नहीं डालता, मूव्स अस नॉट, ये हमारे ऊपर उसका असर नहीं होता। ग्रेट गॉड, ए अजीम खुदा, आई वुड रादर बी, गोया मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ऐसा हूँ, अ पैगन सकल इन अ क्रीड आउटवान, जैसे कोई एक कदीम बाशिंदा, कोई पैगन होता है, कदीम ज़माने का जो होता है, डिसबिलीवर होता है, वो क्या है, सकल इन अ क्रीड आउटवान, वो कैसे, वो जो अकीदा है उन अकीदों पे बिलीव करता है, कदीम रिवायात पे वो बिलीव करता है जो आउटवान है। आउटवान मीन्स मतरूक हैं, आउट ऑफ डेट हैं, वो जो आज के ज़माने पे वो काबिल अमल नहीं रहे। मेरी पोजीशन उस जब बंदे जैसी है। शायर यहाँ पे अपने कंपैरिजन उस तरीके से करता है, सो माइट आई, यही हाल मेरा भी है, जैसे उस पैगन जैसा है जो क्या है, जो कदीम रिवायात से वो अपने आप को क्या करता है, फीट करता है और वो इन चीज़ों से बेखबर होता है। स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, आज मैं कड़ा हूँ, ली स्टैंड्स फॉर ग्रासी लेन, सब्ज़ाज़ार, जहाँ पे सब्ज़ा है, जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे प्लांट्स हैं, जहाँ पे क्रॉप है, मैं ऐसी जगह पे खड़े हो के ली पे, ग्रासी ग्राउंड पे, ग्रासी लैंड पे मैं खड़ा हूँ। हैव ग्लिम्प्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मुझे इसी ग्राउंड से, अब मुझे हरियाली जो इस ग्राउंड से नज़र आ रही है, इधर से मैं भी इसी ग्राउंड से अगर देखूं खिड़कियों से, मुझे भी यहाँ से भी
नज़र आ रही है। और अगर आपको भी तकरीबन नियर अबाउट हर इलाके में आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस इलाके से भी आप बिलोंग करते होंगे, तकरीबन हर इलाके में ग्रीनरी होती है। आप बैठे अगर आप अपने इलाके में ग्रीनरी को देखें, यही हाल इधर भी है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंटली, इसी तरीके से ये भी हो सकता है आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, मैं इस सब्ज़ार पे खड़ा हूँ। हैव ग्लिम्पसेस, मैं देख सकता हूँ, ग्लिम्पसेस झलक मुझे नज़र आती है, देख सकता हूँ। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलान, जो मुझे क्या करते हैं, फॉरलान मीन्स यहाँ पे कम उदास करते होंगे। यहाँ पे मैं क्या है, मुझे तन्हाई कम महसूस होती है, मुझे उदासी कम महसूस होती है जब मैं इन ग्रीनरी को देखता हूँ। ग्रीनरी को देखते हुए मुझे इसका क्या होता है, ग्रीनरी का बड़ा वो पूरा असर होता है, चार्म होता है। इधर से भी मुझे नज़र आता है कितने खूबसूरत प्लांट्स और वो जो मुझे नज़र आ रही हैं। हैव साइट ऑफ प्रोटिस राइजिंग फ्रॉम द सी, और क्या है, जब मैं समंदर को देखता हूँ, पानी को देखता हूँ, समंदर को देखता हूँ, तो वहाँ से क्या करते हैं, जैसे आपके बुक में ये पेज 95 पे आपके सामने ये जो समंदर से बादल क्या है, राइजिंग होती है, एंड दे आर टेकिंग द फॉर्म ऑफ प्रोटियस, वो क्या करते हैं, बकौले पोएट वो देवता की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। हाई हैव साइट ऑफ प्रोटियस, प्रोटियस से मुराद क्या है, समंदरी देवता। ये मिथोलॉजी है एक, उसके मुताबिक ग्रीक मिथोलॉजी, उसके मुताबिक वो हर चीज़ के लिए, जिस तरीके से हिंदू उसमें वो मानते हैं हर एक के लिए, मसलन हवा के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए, अमन के लिए एक अलग अलग खुदा देवता मानते हैं। तो इसी तरीके से पोएट के ख्याल में कि समंदर का जो देवता है उसको मैं उभरता हुआ देखता हूँ। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मैं समंदर से प्रोटियस समुद्री देवता को, प्रोटियस को उभरता हुआ देखता हूँ, जिससे मुझे उदासी, मेरी उदासी कम होती है। आर हेयर ओल्ड ट्राइटन ब्लो इज रीथड हॉर्न, या फिर मैं उस देवता को, ओल्ड टाइटन, ट्राइटन ब्लो, मैं उस खुदा को देखता हूँ जिसको हिज रीथड हॉर्न, जिसकी शक्ल क्या है, ट्राइटन से मुराद क्या है, वो डेमी गॉड है, डेमी गॉड ऑफ सी, डेमी गॉड ऑफ सी, जो कैसा है, डेमी गॉड है, उसके मुताबिक वो देवता जैसा है, ऑफ सी, समंदर का, जिसकी शक्ल कैसी होती है, शक्ल तो ऊपर वाली शक्ल उसकी तो अलग होती है, लेकिन और उसके हॉर्न्स भी होते हैं, लेकिन नीचे जो शक्ल उसकी होती है वो कैसी होती है, वो मछली जैसी होती है। तो फिर ऐसी सूरत में वो कहते हैं ट्राइटन को मैं उसको उधर से उभरता हुआ देखता हूँ, मैं ट्राइटन को क्या करता हूँ, उधर से उभरता हुआ देखता हूँ, जो क्या करता है, जो समंदर से उभरता है। या फिर इसी तरीके से वो क्या कहते हैं, मैं समंदरी देवता को देखता हूँ, मुझे वो चीज़ें नज़र आती है, मेरे लिए फिर उसमें तन्हाई की बात वो नहीं होती, मेरे लिए दुख की बात, मेरे लिए अफसोस की बात उसमें बहुत कम होती है जब मैं इन चीज़ों को शायर के मुताबिक कि अगर हम आंखें खोल के देखें, हम नेचर के जो मज़ाहिर है, फिनोमेना है, तो हमें बहुत कुछ नज़र आता है। यहाँ पे शायर के मुताबिक कि वो समंदर के मुताबिक वो क्या नज़र आता है उसको, वो प्रोटिस नज़र आता है, समुद्री देवता नज़र आता है जो उसके ज़िम्मेदार होते हैं समंदर के लिए। इसी तरीके से दूसरे ट्राइटन है, उसकी वो जब वो जी चलते हैं, उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी हरकत होती है, इज़ रीथड हॉर्न, जिसको वो क्या करते हैं, वो सजे हुए हान होते हैं, हान मीन सींग, रीत जो हार पहना होता है, जो क्या करते हैं, जो हार पहना होते हैं, जब वो उसको हिलाते हैं उसमें हरकत आती है, मैं उसको सुनता हूँ, उसकी आवाज़ सुनता हूँ, तो उससे मुझे मेरी उदासी, मेरी परेशानी कम होती है। क्लियर? उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। एक पर्दा फिर भी मैं इसी को पोइट के उस हवाले से, ये आखिरी लाइनें जो हैं 6 लाइनें
ये सोनेट की जो टोटल 14 लाइन, ऊपर वाली 8 लाइनें, नीचे वाली ये जो 6 लाइनें हैं, उसकी मैं थोड़ी सी दोबारा एक्सप्लेनेशन कर लाता हूँ उसी तर्ज पे शायर के उस हवाले से कि द पोएट सेज दैट वी सी अ लॉट ऑफ थिंग बट ग्रेट गॉड Allah Almighty, we are ignorant of all these things. I would rather be a pagan suckled in a creed out one. My status is, my position is as one who is ignorant of the new happenings. The one who is pagan stands for the ancient people who are suckled, who are used to, who are engraved in the old ideas or thoughts. But my position is like him and the ancient people. My position is the same. I am not updated. I am not feeling all these things. But again he says, so might be. मेरी भी यही position हो सकती है. Again he says, but on the opposite side, in the same stanza, that I can feel too much pleasure from the grassy greens, grassy lanes which I can see at a distance. I can see the lane, I can see the greenery, and from these outlook, looking at this greenery, this makes me much happy and less sad. Though I may be, but I am much happy by seeing all this greenery, because according to Keats, there is another poet that he says that a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. खूबसूरती की जो चीज़ होती है वो अबदी खुशी दिलाने वाली होती है. A thing of beauty is a joy forever. जॉन कीट्स के ये उसमें आ जाते हैं, उसके अपने ओड में उसने वो जिक्र किया हुआ है. तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि मेरे लिए ये ग्रीनरी, दिस ग्रीनरी, द ब्यूटिफुल थिंग, द वाटर, द एयर दैट इज ब्लोइंग and producing hissing sounds, all these are creating some pleasant charm for me, and I can see the cloud or the phenomena or the outlook of the sea, and that gives me as much charm, happiness and effect as it appears to be a sea god Proteus from the sea. Similarly, it also gives me the pleasure like a Triton who blew his wreathed horn. Whenever he moved his wreathed horn of flower arranged in a certain form and worn by the horn, that causes a certain sound, musical sound. So I hear that sound and that has the effect upon me. All these are there according to that. This is Wordsworth poem, The world is too much with us. हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ है, लेकिन according to him हम उससे बेखबर हैं, हमें उसका इदराक बहुत कम हो रहा है. हालांकि ये चीज़ें जो हैं ये दिलावेज़ हैं, ये खुशी दिलाने वाली होती है, ख़ुसूसन वो जो नेचर की होती है. नेचर क्या है, हमारे लिए बहुत ही अप्रिशिएटिव है, हमें बहुत खुशी दिलाने वाली होती है. उसी के हिसाब से तो ये क्या है कि नेचर में हमारे लिए बहुत कुछ है. जब हम उदास होते हैं तो उस वक़्त क्या करते हैं, हम नेचर से इंजॉय कर सकते हैं. वो इंजॉयमेंट, वो खुशी हमें ग्रीनरी में भी मिल सकती है, हमें हवा से भी मिल सकती है, हमें समंदरों से भी, हमें पानी से भी, और ख़ूबसूरत चीज़ों को देखने से ये क्या है, हमें एक नई ताज़गी मिलती है, रिफ़्रेश हो जाते हैं. ये क्या है, पोएम की वो मैसेज है. और ये पोएट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस हवाले से है. इसके साथ उम्मीद है आपको क्लियर होती होगी, उम्मीद है आप समझते होंगे, समझ आ रही होगी इंशाअल्लाह. तो जहाँ तक इस पोएम की इसके साथ वो है, ये आपकी चूँकि कोर्स का हिस्सा है, तो कोर्स के हिस्से होने की वजह से इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें या पैराफ्रेज होगी या फिर पैराफ्रेज पे क्या होते हैं, उस पर कंप्रीहेंशन होते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं.
और इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन के लिए फिर आपने दो चीज़ें करनी होती है। एक्सप्लेनेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, इसमें आपने क्या करना होता है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में जो भी स्टेंजा आपके सामने होते हैं, जो भी लाइनें से उसकी चॉइस होती है, यहाँ पे शायर का हवाला, सबक का हवाला देना होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, दीज लाइन्स have been taken These lines have been taken from the poem The World is Too Much With Us, written by William Wordsworth. He has expressed that humans are much busy materialistic activities and ignorant of nature's beauty. ये उसकी हो गई। इसके साथ सेकंड पार्ट उसमें फिर क्या होगा, ये जो भी लाइनें होगी, ऊपर वाली लाइनें, नीचे वाली, उसके साथ सेकंड पार्ट उसमें क्या होगी, उसमें एक्सप्लेनेशन। ये क्या है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है। सेकंड पार्ट फिर इसका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगी। एक्सप्लेनेशन इन्हीं अल्फाज की आप इन्हीं लाइनों की अपने अल्फाज में आपने एक्सप्लेन करना है। अपने अल्फाज में आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, यानी कोशिश यही करनी है कि इन लाइनों को बारो नहीं करना है। कोशिश करें जितना भी आपके पास मुमकिन है वो आसान से आसान अल्फाज में आप इसको क्या करें, उसको यूटिलाइज़ करें, इसको इस्तेमाल करें। मसलन ऊपर वाले का मैं अगर लिखूं, बताऊं कि एक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट तो सेम हो गया। ऊपर वाले का द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लिव, वेस्ट एंड पार्स, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sordid boon. The sea, the bear that bears our bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. According to the poet, he has expressed that we are doing a lot of things in our daily life. We are utilizing our energy for earning something, but that earning is money, materialistic activities, particularly is expressed in the industrialization period, and all these are there. We are much busy in these things, and we are ignorant of the things what are happening in the daily life, like waters flowing, streams blowing, air blowing and streams flowing. Similarly, the sea and air hissing, all these are less attractive for us, for the people who are too much materialistic, and this is the reason we are not in harmony with the nature. And similarly you can explain it, you can understand. Similarly you use your own words. There is also a term of paraphrase आप उसको कर सकते हैं। वो भी इसी तरीके से आप अपने तौर पे ओन वर्ड जब भी आप लिखें, इन्हीं अल्फाज को आपने नहीं बयान करना है, बल्कि कोशिश करें कि इसमें मुश्किल अल्फाज की जगह आप अपने तौर पे, मसलन यहाँ पे मैंने आउटवर्न है, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आउटडेटेड भी लिख सकते हैं। आप ऐसी है
इस तरीके से पेगन है, आप एंशंट भी लिख सकते हैं, आप एंशंट उसकी जगह अपली है, आप ग्रासी ग्राउंड है, आप ग्रीनरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हो, तो इनका इस्तेमाल करते हुए आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, लेकिन यूज़ ऑफ ओन वर्ड, अपने अल्फाज का इस्तेमाल आपने करना है। ओके, टाइम द पीरियड इज़ नियर अबाउट एंड finishing. I would like to give you some homework as it is requirement of the online classes, and I would write some question on the board, and then you will show these question, the answer of this question you have to mention, you have to reply, and then show your concerned sirs or teacher whenever you go to your school, because once weekly you have to visit and you have to show your homework to your concerned teacher. So you have to show that, answer those questions to your concerned teachers. आपने हफ्ते में एक बार वो जो होमवर्क के लिए स्कूल जाना होगा, तो आप तमाम स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट है दूसरी क्लास पे जो है ऑनलाइन वो होमवर्क है वो आप नोट करते जाएं, कोशिश करें, और फिर मुतल्लिक़ सर आपका उनको जवाब देंगे। मैं सर इनके लिए मुंडी के लेता हूँ आपके लिए। Once again, okay students, this was all about this topic. Once again I go over main points. The main poem was written in a sonnet. Sonnet means a poem that has 14 lines, and there is a certain rhyming scheme in it, that is AB, and BA. All these are there, and similarly the next is there. If you concentrate upon what is rhyme, rhyme means the ending sound of the word. For example, that is soon, soon and boon, pars, hours, moon, tune, hours, flowers. These are I have mentioned some question. I am giving you some clue about this. You have to answer. And there is the poem is written in the personification. Personification is the literary device that is used to give a life to something inanimate. That is known as personification. So Wordsworth has given personification to the waters, to the air that are speaking, are they as like human beings, like living things, although all these are inanimate things. So this is he has used a personification literary device. This was all about this poem. He has mentioned what a human being is doing. Human being is ignorant of the nature, beauty and natural things, but he focuses upon it that there are a lot of things for us we can enjoy, we can minimize our worries by looking at the nature. All these are the central idea or theme of this. The word is too much with us. Okay, according to the requirement, I have mentioned some questions in the form of homework or assignment for you. Since you are not attending the class, all these questions are there. The 4 questions I have mentioned on the board. I am reading for you. If there is some problem of legibility, what is rhyme scheme of the poem? I have already orally mentioned the rhyming scheme, but even then it is a homework for you. What is the rhyme scheme of the poem? Second question number 2, what is the form of poem? What is the form of poem? Whether that is ode, that is sonnet, or that is a song. What has made us insensitive to the beauty of nature? किसने हमें क्या किया, ये नेचर की ब्यूटी को समझने नहीं दिया, उसको इनसेंसिटिव बनाया है. एंड लास्ट, व्हाट इज़ पर्सनिफिकेशन? पर्सनिफिकेशन क्या है? अभी ओरली मैं उसके डिफिनीशन कर चुका हूँ, आप खुद ही थोड़ी सी कंसंट्रेट करें. ये आपके लिए क्या है? व्हाट इज़ फॉर्म ऑफ पोएम? पोएम किस शक्ल में है? ये ओड की शक्ल में, सॉनेट की शक्ल में और सॉन्ग की शक्ल में क्या है, वो भी है, मैं बता चुका हूँ. राइमिंग स्कीम भी मैं उसकी वजाहत कर चुका हूँ. Even then it is for you as a homework. Thank you very much.